So, as usual, uh, welcome back after weekend. Is actually a double welcome back, है ना? वीकेंड के वजह से थोड़ा सा आई होप बैटरीज चार्ज कर लिए होंगे. वैसे कुछ लोग तो कहते हैं कि वीकेंड में कुछ खास बैटरी चार्ज होता नहीं, काम बड़े सारे होते हैं. है ना? बट दैट इज ऑलवेज एन एक्सक्यूज, है ना? चलो, तो as usual, Garvin is Indian style. Pranam, Parth Bansal, good morning. Harshit, good morning. We were discussing on magnetic field due to a infinite sheet current. Now we did an integration approach, and we discovered that the sheet current has a magnetic field which is uniform and parallel to the sheet. Now let's compare it with that of a sheet, which we had already discussed once, and that was of a charge electrostatic case. So like if there's a charge sheet, I mean infinite sheet, there are some comparisons. Number one is that the field was uniform then also. But in that particular case, the field was perpendicular to the sheet. And in this case, it is parallel to the sheet. But yes, perpendicular to the direction of current. So there are small things which are similar, and there are small things which are different in both of them. So that's what we have read in the, or rather we have studied in the last class. Okay. So let's start from that point only. And that is ये infinite sheet अगर है, like this is the front view of the sheet, the thickness view rather. Now you might say thickness view का मतलब होता है जैसे मान लो ये sheet है, suppose ये तो है infinite sheet वैसे, लेकिन अगर मैं यहां से देख रहा हूं, है ना, यहां से, तो ये वाला थिकनेस दिख रहा है, ये वाला, तो उसी थिकनेस को मैंने थोड़ा डिटेल में ड्रॉ. ठीक है, चलो. और एक चीज और है कि अगर करंट ऐसे होता है, मान लो, I mean this is the direction of current out of the plane of the board, then that case जो magnetic field बनेगा, देखो कैसे बन रहा है, यानी magnetic field lines will be actually like this. और नीचे कैसे होगा, ऐसे, है ना, then magnetic field lines will be like this. This would be the magnetic field description or situation in case of an infinite sheet with current parallel to the sheet, and in this case perpendicular to the board. तो इसमें मैं एक काम करता हूं, मैं एक एम्पीरियन पाथ ले लेता हूं ऐसे. ठीक है, तो एम्पीरियन पाथ में क्या हो रहा है ना, ये जा रहा हूं मैं ऐसे करके एम्पीरियन पाथ. Now if you look at carefully, B dot dl here, in this case the angle between the two is 0 degree, therefore integral B dot dl will be B into L for this part. But for this part, if you look at magnetic field and the dl vector is always perpendicular, इसलिए इस वाले के लिए तो B dot dl हो जाएगा 0, है या नहीं. फिर इसके लिए कितना हो जाएगा, फिर वही B dot dl होगा B into L, क्योंकि B का डायरेक्शन बदल चुका है, तो dl का भी डायरेक्शन बदल चुका है, तो देखो फिर से B into L, माइनस नहीं होगा, प्लस होगा. प्लस फिर B dot dl 0 हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री, है ना. यहाँ पे B ऐसा है और dl ऐसा है, तो यानी 90 डिग्री के कारण क्या हो रहा है, 0 डिग्री, 0. So that is the integration of B dot dl. याद करके देखो, मैंने बताया था, इज दैट वी आर टेकिंग K as the current per unit length. So K is the current per unit length. Okay? So in that case, L length पे, तो ये L length है, सपोज L length पे क्या करंट होगा, K into L, है ना, तो इज इक्वल टू K into L into म्यू. तो यानी क्या आ रहा है, यानी आ रहा है 2BL is equal to म्यू नॉट KL, तो LL तो कैंसिल हो गया, यानी B is equal to
देख लो। तो B is equal to in this case mu naught K by 2. अगले, और क्योंकि ये L पे डिपेंडेंट नहीं है, ये देखो कहीं L नहीं आ रहा, यानी ये डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट। तो खैर ये तो हमने क्लास में डिस्कस किया था, बट लास्ट क्लास में हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके इंटीग्रेशन करके प्रूव किए थे। आज हम लोग कैसे कर रहे हैं? आज हम लोग इसको एम्पियर्स लॉ से कर रहे हैं। So the same infinite sheet current now we are deriving by Ampere's law. लास्ट क्लास में हमने उसको बायोट-सावर्ट लॉ से हमने डिस्कस किया। अब हम एम्पियर्स लॉ से कर रहे हैं। खैर आंसर तो सेम ही आना था, और आंसर आ भी गया सेम, एंड दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट K अपॉन 2। ठीक है, देख लो। So that's how it is, we can say as uniform, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ। आप मुझे अभी क्यों बुलाया था? ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, तो इट्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चलो तो लेट्स मूव ऑन नाउ। इशिता तुम्हारे ना बीच बीच में इसके बाद आता है व्हाट इज कॉल्ड एज अ सोलिनॉइड। ठीक है, तो सोलिनॉइड कैसे होता है ना, दिस इज अ सोलिनॉइड। दिस इज अ सोलिनॉइड। तो इट्स लाइक अ स्प्रिंग कॉइल, हमें करंट गया और फिर ऐसे करते 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 फिर वापस आ, तो दैट्स अ सोलिनॉइड। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ सोलिनॉइड। ठीक है, this is called as the axis of the solenoid. Let's say this is the radius of turns of the solenoid, and in general we assume a long solenoid, but even if it is not a long solenoid, no issues, will be discussed कर सकते हैं। So let's take a point somewhere here. ठीक है, and let's say I'm interested in finding out the magnetic field at that point. Fine. So to find out the magnetic field at that point, what I do is that I take up some coil out here, some small section of the coil. तो मैं क्या करता हूं, वहां से x डिस्टेंस दो, एक छोटे से dx सेक्शन पे कॉइल बना। ठीक है, बाय द वे इस सोलिनॉइड का एक डिस्क्रिप्शन भी है, एंड दैट इज कॉल्ड एज स्मॉल m. दिस इज कॉल्ड एज टर्न डेंसिटी, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो गया, हो गया टर्न डेंसिटी। तो dx लेंथ पे कितने टर्न्स होंगे, है ना? तो dx लेंथ पे नंबर ऑफ टर्न्स विल बी व्हाट, n into dx. Now why is it important? Really it's not exactly important, it's just that if you want to calculate, then this is a part of the calculation. क्योंकि क्रिशर सेट की मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट शीट में पैरेलल होते हैं, इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? एक्चुअली पता है क्या है ना कि इनफाइनाइट शीट जो है, ये अगर इनफाइनाइट शीट है ना, तो इस पे एक लाइन बना दो पहले। तो लेट्स कॉल दिस एज द सम काइंड ऑफ मिड पॉइंट लाइन, और एक काम करो, यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स ले लो और उतना ही डिस्टेंस दूर एक छोटा सा और बॉक्स। लेट्स से बोथ आर कैरिंग करंट लाइक दिस, और इधर, तो इसके वजह से अगर यहाँ पे देखते हो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, ये देखो ऐसे, यानी ऐसे परपेंडिकुलर टू दिस। और अगर यहाँ पे देखते हो तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 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 दो मैग्नेटिक फील्ड होंगे, और इसका रिजल्टेंट क्या होगा, देखो पैरेलल टू द शीट। अब ऐसे इक्वल डिस्टेंस पे वायर्स लेते रहो तो हर एक का इंक्लिनेशन अलग अलग होगा, लेकिन होगा इसी लाइन के ऊपर जितना एंगल, वो नीचे भी उतना ही है, क्योंकि सिमेट्री है। तो देयरफॉर उन दोनों का रिजल्टेंट हमेशा क्या होगा, ना पैरेलल टू द शीट होगा। So therefore the magnetic field will be parallel to the sheet. But mind you, it is perpendicular to the wire.
मतलब वायर इन द सेंस की करंट, है ना? देखो करंट ऐसे है टुवर्ड्स द कैमरा, उसके तो परपेंडिकुलर ही हुआ ना, लेकिन शीट ऐसे है, एक्सजेड प्लेन पे शीट है और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो देयरफॉर ये शीट के पैरेलल है लेकिन परपेंडिकुलर टू करंट, तो देयरफॉर इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना, ये होगा पैरेलल टू शीट बट perpendicular to current. So that would be more or less in brief about the magnetic field for infinite. Now we are discussing about this. एक काम करो, तो ये एक कॉइल है और हमें पता है कॉइल के एक्सिस पे अगर एक्स डिस्टेंस पे दूर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है तो उसका हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है? म्यू नॉट आई एक्स स्क्वायर बाय 2 into r square plus x square, sorry, r to the power 3 by 2. So this is the magnetic field, at the axis of a coil, है ना? ये तो हमें पता ही है, तो इसको अब यूज करेंगे, तो therefore इस कॉइल की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ठीक है ना? तो उसके लिए ये हो गया। अच्छा मैं ना दो एंगल्स मार्क कर देता हूँ, एक एंगल ये हो गया, एंगल बीटा, और एक एंगल ये हो गया अल्फा। तो दिस इज लाइक जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो है सपोज पॉइंट पी, और उस पॉइंट के साथ इसके कॉर्नर को ज्वाइन कर दे एक लाइन, तो दैट इज लेट्स से एंगल बीटा, एंड इस कॉर्नर को ज्वाइन कर दिया तो लेट अस से एंगल अल्फा। इतना ध्यान रखना। अब हमने इस छोटे से सेक्शन की वजह से तो आई की जगह क्या हो जाएगा, एन डीएक्स इंटू आई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक टर्न का तो आई होता है, पर उस डीएक्स सेक्शन में देयर आर सर्टेन टर्न्स, हाउ मेनी, एन इंटू डीएक्स, तो एन इंटू डीएक्स इंटू आई विल बी द करंट फॉर अस, so therefore I की जगह मैं लिख दूंगा as n into dx। आई होप दैट्स ओके। तो एक काम करो, ये एंगल ज्वाइन कर लो, तो ये हो गया सपोज थीटा, ठीक है, देयर इज नो हार्म इन जॉइनिंग दैट। तो इससे क्या होगा, इससे हो गया कि आई कैन मेक ए सब्स्टिट्यूशन इन दिस, है ना, आई कैन मेक ए substitution in this case and that is x equal to r cot, ये तो r है, देखिए, तो मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ x equal to r cot। तो अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो दिस इज बेसिकली db, ये db आ, तो db इज इक्वल टू म्यू नॉट r स्क्वायर n बाय 2। अच्छा मैंने सब्स्टिट्यूट क्या करना है ना, x इक्वल टू r cot थीटा, ये tan थीटा तो r by x है, तो cot थीटा हो गया x by r, ठीक है। इससे क्या होगा, dx हो गया माइनस r cos x स्क्वायर, ठीक है। तो ये dx हो गया, तो माइनस बाहर पुट कर लेता हूँ, r cos x, और ये क्या हो जाएगा, ये प्लस होगा भाई, ये मैंने गलत लिखा था, ये माइनस नहीं होगा प्लस होगा, ठीक है। हाँ देव यू आर राइट, ठीक। तो 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर थीटा कट टू द पावर 3 by 2, यानी आर क्यूब कोसेक क्यूब थीटा, है ना। तो देयरफॉर ठीक है, तो dx इक्वल टू दिस इनटू dt, तो इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू नॉट आर स्क्वायर की जगह आर क्यूब कर दो, है ना, इनटू n बाय 2 इनटू ये कोसेक स्क्वायर थीटा है,
और ये कोसेक क्यूब थीटा है, तो ये तो आर क्यूब होगा, ये आर क्यूब, तो आर क्यूब तो खत्म ही हो जाएगा, है ना। एक आई भी आएगा, तो म्यू नॉट आई एन बाई 2 इनटू कोसेक क्यूब थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, तो एक कोसेक थीटा ऊपर जाएगा, तो नीचे कोसेक थीटा है, यानी ऊपर जाके साइन थीटा हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू साइन थीटा। इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, अब देखो जरा ध्यान से कि जब ये यहाँ पे होगा तो थीटा क्या होगा 90 डिग्री, है ना। और जब एकदम एंड पे जाएंगे तो थीटा क्या होगा, बीटा हो जाएगा। तो देयरफॉर ये हो जाएगा पाई बाय 2 टू बीटा, ये हो जाएगा इसके लिमिट्स, है ना। ये हो जाएगा माइनस ऑफ म्यू नॉट एन आई बाय 2 इंटू साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, है ना, ये प्लस हो गया कॉस थीटा पाई बाय 2 टू बीटा। तो ये क्या होगा कॉस बीटा माइनस कॉस पाई बाय 2, तो cos बीटा माइनस cos पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 तो जीरो है ना। तो therefore that will be equal to mu naught ni by 2 into cos बीटा। अभी रुको, ये आया क्या, लेकिन ये आया है यहां से लेके यहां तक के सेक्शन के सबके मैग्नेटिक फील्ड का समेशन, ठीक है ना। तो सिमिलरली यहां से लेके यहां तक का भी समेशन यही बनेगा, बस ये कि बीटा की जगह अल्फा आ जाएगा, है ना। तो एक पोर्शन का आया है बीटा, एक पोर्शन का आ गया बीटा, दूसरे वाले का क्या होगा, ऐसे ही ऐड हो जाएगा, अल्फा सेक्शन हो जाएगा। तो देयरफॉर total magnetic field will be finally what, therefore B will be equal to mu naught ni by 2 into cos alpha plus cos, that is the formula, ठीक है, mu naught ni by 2 into cos alpha plus cos beta. There is also a question from Aryan, and that is हमने यहाँ पे n dx क्यों लिखा, that's the question. तो देखो एक्चुअली पता क्या हो रहा है कि मैं यहां से लेके यहां तक की जो सेक्शंस है ना, उसको dx 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 पोर्शंस में डिवाइड कर। अब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ तो स्मॉल एन है ना, टर्न डेंसिटी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो उस dx सेक्शन में भी तो कुछ वायर्स जा रहे होंगे, कितने वायर्स जाएंगे, n into dx, है ना, n into dx, तो कहीं लिखा होगा हाँ n into dx। तो उस dx सेक्शन में जो कॉइल है या जो वायर्स है वो भी तो सर्कल्स है ना, तो कितने हैं n into dx, और करंट तो आई है ही है, तो देयरफॉर उस छोटे से सेक्शन की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक टर्न की वजह से नहीं हो रहा है, कुछ टर्न्स की वजह से हो रहा है, कितना n dx into i, ठीक है। तो वही लिखा है मैंने, और यहाँ पे वैसे तो है ना i dy, देखो वैसे तो फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3 बाई, तो आई के जगह हमने क्या किया n dx into i, दैट्स द ओनली चीज, और बाकी तो आर स्क्वायर और वो सब जो है वो तो सबसे कोई डिफरेंस नहीं, बस इतना इतना एंड में किया कि लेके यहां से लेके यहां तक का जो मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन वो आया म्यू नॉट ni by 2 cos बीटा, तो फिर यहां से लेके यहां तक का जो होगा वो भी ऐसे ही होगा, वो क्या होगा cos अल्फा हो जाएगा। तो therefore total magnetic field at this point will be what, mu naught ni by 2 into cos alpha plus cos beta. Now Jasraj has asked कि ये डायरेक्शन क्या होगा, है ना। देखो डायरेक्शन के लिए तो ऑलरेडी रूल हमारे पास है ना, ऐसे वाला, जैसे अगर ये सॉलिनॉइड है और अगर ये सॉलिनॉइड है और मान लो यू कॉइल ऐसे, तो यानी बाहर ऐसे जा रहा है और अंदर से घूम के आ रहा है, तो ऐसे अगर होगा तो दैट इज दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और अगर करंट बाहर आ रहा है यहाँ से, है ना, तो इन दैट केस ये या तो ऐसे या तो ऐसे, तो वो डिपेंड करे। लेकिन इसमें ना एक नॉर्थ साउथ का सेटिंग होता है, तो वो मैं डिस्कस करना चाहूंगा, बल्कि वही ज्यादा इंपॉर्टेंट, समझे ना। इसमें एक नॉर्थ साउथ का भी चीज है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो लेट्स सी दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। नॉर्थ साउथ कैसे होगा, है ना,
तो नॉर्थ साउथ होता है एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूविंग इन एंड आउट। तो अगर ये सोलिनॉइड हम देखते हैं ना, ये सोलिनॉइड अगर हम देखते हैं तो सोलिनॉइड तो चलो कॉइल हो गया, कॉइल को इधर से देखो तो करंट या तो क्लॉकवाइज नजर आएगा या तो एंटी क्लॉकवाइज, अकॉर्डिंगली उसका पोलैरिटी नॉर्थ साउथ होता है। कैसे? अगर मान लो तुम इधर से देख रहे हो और मान लो एंटी क्लॉकवाइज है, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा ना, इन दैट केस देखना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगे ऐसे कर। अगर तुमको एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा है ना, इधर से देख के अगर तुमको एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा है यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जहां से बाहर आता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जहां पे एंट्री करता है उसको हम लोग बोलते हैं साउथ। तो देयरफॉर exit points for magnetic field is north pole and entry point for magnetic field is south। तो वही चीज यहाँ से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको याद रखने का तरीका ये तुम लोगों ने सीखा ही होगा, है ना। ये नॉर्थ पोल हो गया, एंटी क्लॉकवाइज करंट नॉर्थ पोल और क्लॉकवाइज करंट हो जाएगा साउथ। ये हो गया क्लॉकवाइज एंड दैट इज इक्वल टू साउथ। ठीक है जसराज, चलो। सो दैट वाज अबाउट योर मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न। अब देखो ये जो सॉलिनॉइड होता है ना, ये जो सॉलिनॉइड होता है इसके अंदर एक स्पेशल केस होता है, व्हाट इज कॉल्ड एज एन आइडियल सॉलिनॉइड। व्हाट डू यू मीन बाय एन आइडियल सॉलिनॉइड? Ideal solenoid is what? A very long solenoid, means length tends to infinity. Very thin solenoid means what? Means R is very small. Number 3, very large number of turns and turn density. यानी दोनों ही वेरी लार्ज है, नंबर ऑफ टर्न्स तो ऑब्वियसली लार्ज होगा ही होगा, और साथ में टर्न डेंसिटी भी वेरी लार्ज। मींस द कॉइल्स आर वेरी वेरी क्लोज नीट टुगेदर। खाली खाली वाला नहीं है स्प्रिंग में जैसे होता है, नहीं, बिल्कुल कंजेस्टेड कॉइल्स, हम उसकी बात कर रहे हैं। इसके ऊपर डिस्कशन हमने अगर याद होगा मैंने स्पाइरल में भी किया, इधर द कॉइल इज सपोज वेरी कंजेस्टेड, तो ही कैलकुलेशन हो पाए। तो ये ऐसे केस में दिस विल बी कॉल्ड एज एन आइडियल सॉलिनॉइड। अगर ऐसे होगा तो जरा सोचो, क्या होगा, है ना। इन दैट केस if this is a, let's say an ideal solenoid, फिर क्या होगा? This is an ideal solenoid. So this will be some kind of an ideal solenoid. ऐसे में क्या होगा, क्योंकि बहुत लॉन्ग है, so therefore near mid points, नियर मिडिल क्या हो जाएगा, ये एंगल बहुत छोटा हो जाएगा, दिस बीटा, अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल, है ना। तो अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल, so therefore cos alpha approximately cos beta is approximately 1. So therefore be near the middle क्या हो जाएगा, mu naught ni by 2 1 plus 1 यानी mu naught ni। ठीक है, और बी नियर द कॉर्नर, कॉर्नर पे क्या होता है, तुम कॉर्नर पे आते हो तो इन दैट केस क्या होगा, यहाँ तो अल्फा 90 डिग्री होगा, और अगर उस कॉर्नर पे जाते हो तो बीटा 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो नियर कॉर्नर्स क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री
बीटा अप्रोक्सीमेटली 0 डिग्री, और ये इस कॉर्नर पे होगा LHS पॉइंट, और राइट हैंड साइड वाले कॉर्नर पे क्या होगा, अल्फा अप्रोक्सीमेटली 0 डिग्री एंड बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या RHS में आइदर केस में क्या हो रहा है ना, cos अल्फा प्लस cos बीटा है, तो एक 0 डिग्री एक 90 डिग्री, तो 0 + 1 हो गया, cos 0 is 1, cos 90 is 0, तो यानी 0 + 1, तो therefore B at corners क्या होगा, mu naught Ni by 2 into 1 plus 0 is equal to mu naught Ni by 2. Have a look. Saksham has asked a question, and that is क्या हम उसमें लिमिट्स माइनस अल्फा से बीटा नहीं डाल सकते? नहीं, माइनस अल्फा से बीटा नहीं होगा, फिर हो जाएगा माइनस अल्फा से 180 माइनस बीटा, कि है ना, मान लो इधर वाला एंगल लिया, तो ऐसे होते 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 वो समझ लो ना चेंज होते उस तरफ जाएंगे, तो फिर दूसरे तरफ से मतलब उसी ओरिएंटेशन से एंगल लेना पड़ेगा, तो वो चेंज करना पड़ेगा। बाकी वो लिमिट सेम ही आएगा, बाकी आंसर सेम ही आएगा, डोंट नीड टू वरी ऑन दैट सक्षम। इसलिए मैंने वो कंट्रोवर्सी अवॉइड किया, मैंने इसलिए एक साइड का निकाला, हमें पता है कि सिमिलरली दूसरे साइड का निकलेगा, और सब तो ऐड ही होता है, क्योंकि ऐसे ऐसे कॉइल अगर होगा ना, तो हर पॉइंट पे देखना मैग्नेटिक फील्ड का एक ही कंट्रीब्यूशन बनेगा, चाहे इस तरफ पॉइंट हो चाहे इस तरफ। सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट अगर ये रिंग है ना, तो मान लो ये रिंग है और ये डॉटेड है और करंट ऐसे है, तो इन दैट केस मैग्नेटिक फील्ड हर जगह ऐसे ही हो, तो एक ही डायरेक्शन में कंट्रीब्यूशन होता है। तो ऐसे ऐसे नहीं होगा कि पॉइंट के इस तरफ के वाले कॉइल्स इधर मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूट करेंगे, पॉइंट के उस तरफ वाले कॉइल्स इधर वाले कंट्रीब्यूट करेंगे और माइनस करना है, नहीं, सब सारे कॉइल्स जो है एक ही ओरिएंटेशन में मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूट करेंगे, चाहे वो पॉइंट कॉइल के इस तरफ हो चाहे कॉइल के उस तरफ। देखो हर जगह देखो सेम कंट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसलिए कॉइल के इस तरफ भी इधर मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूशन है और उस तरफ भी इधर है, तो देखो ऐड ही होना है, इसलिए 0 से लेके बीटा सॉरी वहां से लेके यानी पॉइंट से लेके इस कॉर्नर का बीटा आया था आंसर, इसलिए मैंने अल्फा वाला ऐड कर, ठीक है। आई होप दैट्स ओके ना। चलो तो यानी मिडिल पे हो गया म्यू नॉट Ni और कॉर्नर्स पे हो गया म्यू नॉट Ni by 2। नाउ देयर इज सम मोर क्वेश्चन आल्सो, क्रिश हैज आस्क्ड कि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल का सिग्निफिकेंस क्या होता है। एक्चुअली यू नो व्हाट, दिस सोलेनॉइड इज समव्हाट ट्रीटेड एज सिमिलर टू अ बार मैग्नेट। जैसे होता है ना बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल से लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलते हैं, फिर वो घूम के साउथ पोल में एंट्री करते हैं, तो इट्स समव्हाट लाइक दैट। तो देयरफॉर वो कंपैरिजन करने के लिए हमने सोलेनॉइड पे भी एक नॉर्थ और साउथ का एक इमेजिनेशन किया, तो दैट्स व्हाट इज डन। देयर वाज आस्क्ड कि आइडियल सोलेनॉइड को तो इनफाइनाइट सिलेंडर लिया और एम्पियर्स लॉ लगा के बी निकालना गलत होगा। नहीं देखो, अगर आइडियल सोलेनॉइड है तो इन दैट केस जो मिडिल का वैल्यूज होगा वो निकल जाएगा एम्पियर्स लॉ से, और वही अभी नेक्स्ट निकालो। लेकिन क्योंकि हमारे पास दोनों केस पॉसिबल है, आइडियल भी और नॉन आइडियल भी, तो इसलिए हमने जो है जनरल सोलेनॉइड का पहले निकाला, व्हिच टर्न्ड आउट टू बी वो sin अल्फा प्लस सॉरी cos अल्फा प्लस cos बीटा वाला, दैट वी डिराइव्ड अभी, और उसके बाद स्पेसिफिक हम लोग केस कर रहे हैं मिडिल और कॉर्नर। अब हम उसको आइडियल मानते हुए मिडिल वाले पे वो भी निकालेंगे। यानी एक्चुअली देखो मैं बताता हूँ होता क्या है, if you look at a real solenoid and an ideal solenoid, what's the difference? So this is an ideal solenoid, ऐसे करके ये आइडियल में क्या होगा, अंदर मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस होंगे। Now you might say really होगा क्या? As I said, आइडियल में तो होगा, आइडियल में तो होगा, और फिर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये पूरा इंफिनिटी तक स्प्रेड है, तो वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे घूम के वहां पे जाएंगे, तो ये आइडियल का माना जाता है। रियल सोलेनॉइड में क्या होगा, रियल सोलेनॉइड लाइक दिस, so the magnetic field lines will actually be like this. ठीक है ना, एक ऐसे जाएंगे बाकी सब ऐसे होंगे,
इस तरह से। बाकी ऐसे सिमेट्रिकली नीचे भी ऐसे ही हो, तो दिस इज अ रियल सोलेनॉइड, ठीक है ना, दिस इज अ रियल सोलेनॉइड। लेकिन हम लोग तो आइडियल ले रहे हैं, तो आइडियल में क्या मान के चलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर एक्जेक्टली पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड, ये मान के चले, ठीक है, दैट्स व्हाट वी विल बी अज्यूमिंग। तो अगर मैं आइडियल लेता हूं तो इन दैट केस एम्पियर्स लॉ कैसे लगाएंगे वो देखते हैं। यानी आइडियल केस में एम्पियर्स लॉ, तो एम्पियर्स लॉ इन आइडियल सॉलिनॉइड, तो नॉन आइडियल में तो लगेगा ही नहीं, तो क्या हो गया, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना, ये आइडियल सॉलिनॉइड है, लेट्स से जो भी है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे एम्पियर पाथ लेंगे, कुछ लेंथ ए का ले लो, ठीक है। आइडियल सॉलिनॉइड में बी आउटसाइड इज टेकन एज अप्रॉक्सीमेटली 0, क्यों बताओ, और इनसाइड में तो पैरेलल है, तो देयरफॉर बी डॉट डीएल बोलते सिर्फ इतने ही हिस्सा कैलकुलेशन होगा। यहाँ पे है थोड़ा सा पोर्शन, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन ये 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, बी आउटसाइड तो अप्रॉक्सीमेटली 0 है, so integration b dot dl will be only this b into a, that's plus 0 plus 0 plus 0 0 0, बाकियों का 0 फॉर मल्टीपल रीजंस। यहाँ पे तो इसलिए कि 90 डिग्री है मैग्नेटिक फील्ड b dot dl, और यहाँ पे क्योंकि b 0 है अप्रॉक्सीमेटली, तो ये इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब आई बोलते क्या होगा ना, इसी के अंदर से टर्न्स आ रहा है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ अगर n होता है तो a लेंथ पे क्या होगा, a into n, then म्यू नॉट an into i। देख लो अच्छे से। सर मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर से भी जाती है। हाँ बाहर जाएंगे ना, लेकिन क्योंकि इनफाइनाइट है ना, इसलिए वो घूम के काफी दूर से आएंगे, इन्फिनिटी से घूम के आएंगे। मैं आइडियल की बात कर, सर इसलिए आउटसाइड 0 लिया है। आउटसाइड अप्रोक्सीमेटली 0, और रियल लाइफ में अगर देखो तो आउटसाइड भी कम होगा, क्यों होगा अभी बताता हूँ मैं, ठीक है। सो मैं आस्क्ड कि म्यू नॉट एन आई आइडियल के लिए है क्या, हाँ म्यू नॉट एन आई आइडियल के लिए, ठीक है ना, लेकिन रियल सोलिनॉइड में भी अगर मिडिल पॉइंट पे लेते हो तो, और अगर सोलिनॉइड थोड़ा ठीक ठाक लंबा है तो दैट केस वहां पे भी म्यू नॉट एन आई ठीक ठाक काम करे, ठीक है ना, इट्स लाइक दैट। तो ये आ गया, तो b into a is this, so therefore b कितना आ गया, a कैंसिल, है ना, so therefore b is equal to mu naught n i। अब आओ कि भाई आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड का 0 हमने कैसे लिया, एक्चुअली देखो अप्रोक्सीमेटली ये ले रहा हूँ कि आउटसाइड में क्या होता है। अगर मान लो मैं कॉइल लेता हूँ छोटा सा, मान लो ऐसे कॉइल और ऐसे, और तुमको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो अगर मैं ऐसे एक क्वेश्चन देखता हूँ तो देखो इसके वजह से क्या होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, और इसके वजह से क्या होगा, ऐसे होगा, तो ये दोनों अप्रोक्सीमेटली कैंसिल कर जाएंगे, दिस इज वेरी स्मॉल लेंथ। और आइडियल में हमने क्या किया, हमने तो वेरी स्मॉल ही लिया है या नहीं, तो देयरफॉर अप्रोक्सीमेटली बी जो है 0 हो जाता है, कोई एग्जैक्ट 0 तो ऑब्वियसली नहीं होता है, तो इसलिए हमने क्या लिखा, बी आउटसाइड में अप्रोक्सीमेटली 0, ठीक है ना। तो इस वाले पोर्शन की वजह से ऐसे, और इस वाले पोर्शन की वजह से ऐसे, सो द बी विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, लगभग कैंसिल हो जाएगा क्योंकि कॉइल बहुत छोटा सा है, तो देयरफॉर यहां से, है ना, यानी यहां से यहां का डिस्टेंस और यहां से यहां का डिस्टेंस ये लगभग सेम ही है, क्योंकि वो कॉइल बहुत छोटा सा, तो they will almost tend to cancel, ठीक है ना। So that's why we take b outside is approximately equal to 0, and therefore ideal solenoid में mu naught n i ही काम करेगा। लेकिन अगर मान लो तुम एक प्रैक्टिकल सोलिनॉइड का b का डायग्राम बनाओगे, तो इन दैट केस क्या है, प्रैक्टिकल सोलिनॉइड पे अगर b का डायग्राम बनाऊंगा, if this is let's say the solenoid, मिड पॉइंट है, तो इन दैट केस जो b का डायग्राम बनेगा, तो देखो यहाँ तो म्यू नॉट एन आई है, और यहाँ पे आधा, यहाँ पे भी आधा,
द डायग्राम विल बी रफली लाइक दिस, और बाहर और कम हो जाएगा, और उसके पीछे भी लॉजिक। में से कि ये बाहर और कम क्यों हो गया, है ना? बाहर और कम इसलिए हो गया क्योंकि अगर तुम बाहर देखोगे ना तो बीटा तो अभी भी अप्रोक्सीमेटली 0 है, लेकिन जो अल्फा है वो तो ऑब्ट्यूज हो गया ना। देखो जब तक यहाँ पे था तो अल्फा ये था, जब बाहर आया तो अल्फा 90 डिग्री होता, और बाहर चलो तो अल्फा तो ऑब्ट्यूज हो गया। तो फॉर आउटसाइड पॉइंट, जैसे इस केस में हियर अल्फा इज ग्रेटर देन 90 degree and this, and beta is approximately 0 degree. So therefore, B on the axis, but outside क्या होगा? Less than ये mu naught ni by 2, ये mu naught ni है और ये हो गया mu naught ni by 2। तो मिडिल पे mu naught ni और एंड में आते आते mu naught ni by 2, ये हो गया कॉर्नर पे, और अगर उससे भी बाहर चले जाओगे तो उससे भी कम। कितना होगा वो तो पता ही है तुमको। और फिर एंड में इंफिनिटी पे क्या होगा ना, अल्फा 180 डिग्री और बीटा 0, या बीटा 180 डिग्री अल्फा 0। तो वो एक -1 एक +1, तो यानी बी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस क्या होगा? 0, है ना? एज यू गो ऑन द एक्सिस, यानी अगर तुम एक्सिस के मिडिल से स्टार्ट करो तो mu naught ni, फिर घटते 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 mu naught ni by 2 कॉर्नर पे, फिर और घटते 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 इंफिनिटी पे जाके 0 होगा। दैट वुड बी द ट्रेंड मोमेंट्स। यहाँ उल्टा हो जाएगा, यहाँ का देखोगे तो बीटा ऑब्ट्यूज आ जाएगा और अल्फा अप्रोक्सीमेटली 0 आ जाएगा। यहाँ के लिए अल्फा अप्रोक्सीमेटली 0 डिग्री और बीटा हो जाएगा greater than 90 less than 180, यानी कहानी वहां पे भी यही आ जाएगा, and that is what b is equal to less than mu naught ni by 2। तो इस पॉइंट पे भी यही सेम चीज काम करेगा, b is less than mu naught ni by 2। ठीक है, देख लो अच्छे से। चलो so that gives us more or less an idea of what exactly is the magnetic field variation, ठीक है ना, in this particular case। इसके बाद हम लोग एम्पियर्स लॉ के ऊपर थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज अ कैविटी एनालिसिस। याद करके देखो, इसके ऊपर हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किए थे, ठीक है। तो लेट अस से देयर इज अ सिलिंड्रिकल कैविटी, सो लाइक दिस इज अ थिक सिलिंड्रिकल वायर, ठीक है ना, दिस इज अ थिक सिलिंड्रिकल वायर। और लेट अस से मैंने कोई कैविटी बनाया, ठीक है ना, यू विल फाइंड आउट। तो यानी ये तो इसका डायग्राम हो गया, तो ये इसका, एंड लेट्स से द करंट डेंसिटी सपोज J, या चलो करंट पासिंग इज सपोज I, यानी ये रेडियस R है, इट्स इनफाइनाइट वन सॉलिड सिलेंडर ऑब्वियसली, ठीक है ना, इट्स इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। और इसके थ्रू जो करंट पास हो रहा है वो I है,
to find out the magnetic field at this point, at the center of the cavity. यानी अब मैं इस कैविटी का टॉप व्यू से बना रहा हूं, तो ये ऐसे होता है. ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो. वैसे हम इसको जनरलाइज करके किसी भी पॉइंट पे निकालेंगे, बट स्टार्ट करो इसी पॉइंट. तो remember that the current passing through the cut cylinder, means cylinder after cutting is I. I need to find out the magnetic field at the center of the cavity. ठीक है, to find the magnitude of magnetic field at center of cavity. ये दोनों जगह का निकालो. एक तो सेंटर ऑफ कैविटी तो है ही है, और outside the cylinder also parallel to this axis obviously, outside the cylinder at a perpendicular distance of small r is equal to 2 times capital R. इन दोनों जगह पे जो है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालो. चलो go ahead. Okay, let me now start. First of all, because the current that is passing here is in 3/4 the area. Now that is critical. So therefore अगर ये शेडेड पोर्शन का करंट I है, तो ये जो कटा हुआ पोर्शन पे करंट होना चाहिए वो है I/3. क्यों? क्योंकि जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया है 3/4 पाई आर स्क्वायर. पूरे का तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो शेडेड पोर्शन का 3/4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो कटा हुआ पार्ट है वो है पाई आर स्क्वायर. दैट मींस फॉर दिस आउटसाइड पॉइंट, पहले आउटसाइड पॉइंट का निकाल लेते हैं. फॉर दिस आउटसाइड पॉइंट द मैग्नेटिक फील्ड विल बी ड्यू टू एक करंट 4I/3. क्यों? क्योंकि I और इसका I/3, तो I मिला के, और एक करंट 4I/3, एक करंट I/3. ठीक है ना? So therefore mu naught at this point, let's say Q, and let's say this point is PM. So mu naught B at Q is equal to B due to 4I/3 and B due to I/3. That's all. तो करंट को ऊपर की तरफ ले लेता हूं मैं. तो अगर ऊपर की तरफ लेता हूं या नीचे की तरफ ले लो, चलो एज यू विश. अगर करंट को नीचे की तरफ लेते हो तो इन दैट केस यहाँ पे जो 4I/3 का कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा म्यू नॉट I by 2 pi R, है ना? और यहाँ पे एक I/3 का करंट ऊपर की तरफ होगा यहाँ पे. So this is 4I/3 and this is I/3 upwards. तो I/3 की वजह से कितना होगा ना, जो भी होगा वो तो माइनस होगा, क्योंकि 4I/3 की वजह से अगर प्लस किए है तो I/3 की वजह से माइनस किए, यानी माइनस म्यू नॉट I/2 pi 3R/2. 3R/2 is because this is the axis of the कटा हुआ सिलेंडर, तो उसके यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगा 3R/2. दैट्स द कैलकुलेशन. ठीक है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू म्यू नॉट I by pi R माइनस म्यू नॉट I by 9 pi R. ठीक है, तो 8/9, 1 minus 1/9 यानी इक्वल टू 8/9 म्यू नॉट I by 5. दैट्स आंसर. तो पहले वाले का तो आंसर हो गया 8/9. 8/9 किसी का है क्या? सो मैं आज के ऑपोजिट क्यों हुआ? एक्चुअली पता क्या ना, जो कैविटी है, कैविटी को हम कैसे विजुलाइज कर ना, ये जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द थिक शीट है, थिक सिलेंडर है, उसका करंट अगर I होता है तो ये तो 1/3 ऑफ द एरिया है ना, तो I/3. लेकिन उस पार्ट में तो कोई करंट ही नहीं है, इसलिए मैंने क्या माना है कि I/3 ऊपर भी ले लो, I/3 नीचे भी ले लो. तो जो I/3 नीचे वाला है वो इस I के साथ जुड़ के हो गया 4I/3, यानी नेट 4I/3 नीचे समझ और एक I/3 ऊपर.
तब ना नेट करंट को आई हम मेंटेन कर पाए। लेकिन I/3 का अलग जगह है, वो इस सिलेंडर पे है, और 4I/3 जो है पूरे सिलेंडर पे। So those minor things that you have to accommodate and adjust, and that will give you the answer. इस particular case में आंसर आ गया 8/9 mu naught I by pi r। ठीक है, देख लो अच्छे से। That is the magnetic field। आर्यन says वो 1/3 होगा। हाँ? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ यहाँ पे हुआ एक 3/r भी तो होगा, है ना? यानी 2/9 है, सॉरी, ठीक, ये 3 भी तो है, मैंने ध्यान नहीं दिया, यानी इक्वल टू 2/9 है। चलो ठीक है, मेरे गलत था, तो 2/9 आई थिंक है कईयों का। आर्यन का भी आंसर 2/9 है। ठीक है, आर्यन के ही आंसर 2/9। ठीक है, ठीक, ओके, एग्रीड। अच्छा, अब आ जाओ कैविटी वाले। कैविटी वाले में क्या है, इंटरनल पॉइंट। इंटरनल पॉइंट का जो बेसिक फॉर्मूला है वो तो ये है, mu naught I r by 2 pi r square। ये होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू thick wire at an internal point which is at a distance of small r from the axis। ठीक है, तो वो चीज, तो इस बार जो है ना, क्योंकि मैं कैविटी के ठीक सेंटर पे हूं, तो इसलिए जो 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 कैविटी वाला सिलेंडर है उसका कंट्रीब्यूशन 0 है ना, तो इसका तो हो गया 0, और जो बचेगा वो इसी के वैसे हो। तो इसके बाद रेलेवेंट वैल्यू पुट कर लो, तो mu naught I r by 2 pi r square। ठीक है, देखो अच्छे से, तो आई थिंक अब क्या हो जाएगा ना, 2 to कैंसिल होती है, यानी mu naught I by 3r है ना, यानी mu naught I by 3 pi r। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसे पॉइंट है जहां पे वो जो कैविटी वाला सिलेंडर है उसका कोई रोल, राइट, एक बार चेक कर लो। तो बी एट पॉइंट क्यू, यानी क्यू नहीं सॉरी, पी मत, तो पी होगी ये वाला पॉइंट, और यहाँ पे कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो। तो 4I/3 के लिए r/2, और जो कैविटी वाला सिलेंडर उसका तो सेंटर पे, इसलिए इसका कोई रोल नहीं है, तो इसलिए इसी का रोल रह गया, यानी mu naught I by 3 pi r। दैट्स द आंसर। लेकिन मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको जो है थोड़ा सा इसको जनरलाइज कर दिया जाए, आई थिंक दैट वुड बी बेटर, है ना? दैट वुड बी बेटर। अब हम जनरलाइज करना चाहते हैं, तो जनरलाइज करने के लिए कैसे होगा ना, ये ऐसे, तो जनरलाइज अगर करते हो ना, इन दैट केस व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट रेट, है ना? तो वो हो जाएगा mu naught j क्रॉस r। एक्चुअली देखो क्या है ना, मैं इसका पूरा एक्सप्रेशन बताता हूँ। अभी पहले देखो कि मैग्नेटिक फील्ड आ कैसे है, तो mu naught I small r by pi r square। Now what is I by pi r square? It is j, so therefore this is actually equal to mu naught into j into r। ये होता है मैग्नेटिक फील्ड एट एनी इंटरनल पॉइंट। लेकिन हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लाइंस होती है, तो वो कैसे निकालोगे? तो अगर मान लो यहाँ पे कोई r पॉइंट है, ये, तो इसको r वेक्टर लिख लो, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगे? ऐसे होंगे,
हमें पता है ऐसे होता, तो लेट अस से ये डॉट है, तो जे तो डॉट हो गया है ना, करंट कमिंग आउट, तो जे है ना क्रॉस आर ऐसे, यानी ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और वही होता है ये देखो, है ना, किसी भी और पॉइंट पे लेना, यहाँ पे लेना, तो देखो जे क्रॉस आर इधर हो गया, तो देयरफॉर द मैग्नेटिक फील्ड at a internal point in a thick solid cylindrical current. So this is the magnetic field formula in vector terms, है ना, at an internal point, okay, of thick cylindrical wire. क्या होगा, the B is equal to mu naught into J cross R. J is the current density. अब इसको हम कैसे करेंगे, देखो सपोज आप कैविटी के लिए चाहिए, तो कैविटी के लिए अगर चाहिए, नाउ लेट्स लुक एट फॉर अ कैविटी, तो कैविटी के लिए क्या करेंगे ना, मान लो यहाँ पे एक कैविटी है which is suppose at a distance of RC, right? ठीक है, और मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है P, तो ये हो गया RP यानी R वेक्टर, मैं इस पॉइंट पे निकालना चाहता हूँ, तो ये वेक्टर हो गया कितना, ये वेक्टर हो गया इक्वल टू RP माइनस RC या R माइनस RC, है ना। तो अगर मान लो बाय द वे ये कैविटी वाला सिचुएशन, ये कैविटी है, ठीक है ना, वो जो छोटा सा वो कैविटी, कुछ एक रेडियस का है, बट आई एम नॉट सो इंटरेस्टेड इन द रेडियस, मतलब नहीं रहता है, हम इसको यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे, देखो देखो मैं अगर इस पूरे को जे मानता हूं, लेट्स से जे चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, तो कैविटी वाले में माइनस जे होगा, है ना, यानी P at point P is because of B due to J plus B due to minus, अब B due to J क्या होगा, अब B due to J हो जाएगा म्यू नॉट J क्रॉस R या प्लस म्यू नॉट माइनस J क्रॉस, अब सेंटर ऑफ द ग्रेविटी का RC इज द वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ कैविटी, एंड माइंड यू ये जो मैंने फॉर्मूला दिया था ना, P इज इक्वल टू म्यू नॉट J क्रॉस R, इसमें R जो मर्जी नहीं हो सकता, R मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, ये भी ध्यान रखो, जो मर्जी R नहीं चले, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। चल तो इनटू ये वाला व्हिच इज व्हाट, R माइनस RC, R माइनस RC, ये हो गया इक्वल टू म्यू नॉट J क्रॉस R माइनस, देखो ना, प्लस म्यू नॉट इनटू, अब माइनस J क्रॉस R, तो माइनस J क्रॉस R, और ये माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस J क्रॉस RC, है ना, तो इज इक्वल टू म्यू नॉट ऑफ J क्रॉस R माइनस म्यू नॉट ऑफ J क्रॉस R प्लस म्यू नॉट इनटू J cross RC. So therefore magnetic field at point P will be equal to mu naught of into J cross RC.
ठीक है, अब देखो आरसी तो कैविटी वाले का एक्सिस का वेक्टर हो गया, जहां पे उसका सेंटर ऑफ कैविटी है, तो ये तो फिक्स है ना? तो therefore we conclude that the magnetic field at any point inside cavity, है ना, at any point inside cavity is uniform, is same, any uniform. अब देखो this is some kind of a symmetry you can see. ये चीज देखा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी अगर याद करके देखो कैविटी के अंदर देखा होगा कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आया, and that's what we're getting same here also. So there's an uncanny system or symmetry between all these cases. Sir. Must have seen that. है ना? देख लो अच्छे से. So that was about your magnetic field due to a cavity. Okay. Fine. You know, when it comes to a sheet, थोड़ा सा याद करके देखो, थोड़ा सा याद करके देखो, कैपेसिटर में क्या हुआ था? अगर मान लो एक प्लेट में सिग्मा होता है और एक प्लेट में माइनस सिग्मा होता है, तो हमने देखा था कि कैपेसिटर प्लेट के बाहर, है ना, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था और अंदर जो है दोनों मिलके फील्ड. So now let's look at two parallel sheets for infinite sheet current. तो जैसे ये infinite sheet current है, मान लो ये डॉट है, और ये भी एक infinite sheet current है, and let's say वो क्रॉस, ठीक है. भाई okay, let's find out the magnetic field. Let's say this is also K, this is also K, but ये डॉट है, ये क्रॉस है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक. तो देखो यहाँ पे जो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा वो तो इंडिपेंडेंट डिस्टेंस है, और वो कैसे होगा, ऐसे, यानी इधर. और अगर इसके वजह से देखते हो तो कैसे होगा, करंट इनटू, यानी और इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस. So there is a very big uncanny similarity between what happens in several electrostatic phenomena and what we are seeing even in magnetic phenomena also. Same logic यहाँ पे भी लगेगा. अगर मैं इसके करंट की वजह से यहाँ पे देखता हूँ मैग्नेटिक फील्ड, तो कैसे आएगा, ये देखो ऐसे, यानी इधर. और अगर इसकी वजह से देखता हूँ इधर, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0. तो अगर ऑपोजिट चार्जेस होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में शीट्स में, तो शीट के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, शीट के अंदर डबलिंग अप हो जाता है. तो वैसे तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन होता है एक एक शीट के, वैसे इनटू 2 करके सिग्मा बाय एप्सिलॉन होता है. इसमें भी यही हो जाएगा. अगर मैं इसकी वजह से देखता हूं तो देखो कैसे होगा, प्लस, और इसकी वजह से देखता हूं तो ये भी ऐसे होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन डबलिंग अप हो जाएगा. तो एक के वजह से तो पता है म्यू नॉट के बाय 2, यानी म्यू नॉट के बाय 2 into 2, यानी ठीक है, देख लो अच्छे से. So like this can be almost treated as some kind of a magnetic capacitor, कि कैपेसिटर प्लेट के बीच में हमने मैग्नेटिक फील्ड को जो एज इफ बांध के रखा है ना, और प्लेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड हमने एग्जिस्ट करने नहीं दिया. So equivalent to something like, as I said, a magnetic capacitor. वो अलग बात है कि इसका कोई खास रोल नहीं है और ना ही इसका कोई खास
यूटिलिटी भी है, ऐसा तो नहीं कि इसका कोई यूटिलिटी भी है, बट यस इट हैज इट्स ओन रोल अगेन, ठीक है ना। चलो, सो दैट वाज अबाउट योर सम यूजेस ऑफ द एम्पियर्स लॉ, ठीक है ना। तो इसके बाद जो है हम लोग और डिस्कस करेंगे नहीं आज, तो आज यहीं पे खत्म करेंगे, लेकिन फिर से मैं याद दिलाऊंगा इस दैट इस हफ्ते तो सीपीटी है ही है, तो सीपीटी का सिलेबस आई होप यू हैव टोल्ड यू, इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, पोटेंशियल एंड रिलेटेड थिंग्स में, फिर है कैपेसिटेंस, फुल एंड करंट फुल, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस एंड करंट, पूरे चैप्टर, ठीक है, एक बार देख लो अच्छे से। So this would be the syllabus of CPT. Clear? I think शायद परसों या जब भी है. And the pattern remains the same, so there is no change in the pattern as such. वही single choice, multiple choice, comprehension, integer type, and long short type के जो 3-4 क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, 3 क्वेश्चंस 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स. So the pattern etc remains the same. There is no change as such, and this is the syllabus. ठीक है ना? We have more or less come to the end of the discussion on Ampere's law. Maybe 1 or 2 questions we will do tomorrow, and that would wind up the discussion for Ampere's law based circuits. ठीक है ना? उसके बाद start होगा next chapter, which is on electromagnetic induction, which is of course something which is probably the most practically relevant chapter for us. Relevant in this sense कि जो कि हमें सबसे ज़्यादा हमारे real life के साथ connected. कहने के लिए तो वो फ्रिक्शन विक्शन भी है, बट देन देखो फ्रिक्शन के बारे में हम लोग इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर करंट घर में आजकल 10 सेकंड भी चला जाता है तो वो हमें याद आता है, ठीक है ना। खैर आजकल इन्वर्टर बैकअप भी होता है, बट देन लेट्स से करंट चला गया, इन्वर्टर भी डाउन हो गया ड्यू टू सम रीजन, तो फिर याद रहता है। जितना फ्रिक्शन याद रहता है उससे आई एम श्योर 10 टाइम्स ज्यादा याद आता होगा इफ करंट इज नॉट देयर। और करंट जनरेट करने का जो प्रोसेस है, तरीका है, वो अगले चैप्टर का बेस है, या कह सकते हो कि एंटायर मैटर, ठीक है ना। दैट्स व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग टुमारो। ओह, हरियंत सेठ की क्वेश्चन, हाँ मैं देख लूंगा एक बार, कई बार थोड़ा सा डिले हो जाता है, ठीक है। बट आई हैव गिवन यू सम बेसिक हिंट, तो आई थिंक ऑन इट इन द मीनवाइल, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल इसको कंटिन्यू करेंगे। टुमारो विल बी कंटिन्यूइंग विद मे बी दिस चैप्टर अ लिटिल बिट मोर, प्लस और मैग्नेटिज्म को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद we'll talk a little bit about bar magnet and Earth's magnetism, and after that we will go on to next chapter, which is EMI. Fine. चलो आज के लिए इतना ही. Have a good day. Enjoy yourself. Bye bye.